Okay, very good afternoon to all. Now we shall proceeding with the lecture. Hope my voice is audible and screen is also visible to everyone. Now Yes, sir. coming to next topic, that is Cayley-Hamilton theorem in eigenvalue eigenvector. Cayley-Hamilton theorem. Now, what is the statement of Cayley-Hamilton theorem? Cayley-Hamilton theorem statement is clearly state that every square matrix satisfies its characteristic equations. What is characteristic equation? If you remember, that is what is a characteristic equation? That is a lambda cube lambda cube s1 minus sorry lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a, which is equal to 0. This is our characteristic equation. So Cayley-Hamilton theorem state that every square matrix satisfies its characteristic equation. So whenever a square matrix is there, they must satisfy this equation, means this is equal to 0. तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में वर्कआउट के लिए क्या है, जो लैम्बडा है उसको a से रिप्लेस करोगे, मीन्स whenever I have to write this equations, I have to write this part as determinant of A. So I'm just going to solve the problem. So definitely you will understand how to tackle such a kind of problems. तो क्योंकि थ्योरम आपके लिए कोई वेरिफिकेशन है नहीं, एग्जाम में भी आपके लिए कोई भी थ्योरम वेरीफाई करने के लिए नहीं आएगा. Only problems we have to solve on the basis of Cayley-Hamilton theorem. Now, the first problem, verify verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A, and hence find A raised to minus 1 and A raised to power 4, where where A is equal to 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1.
So this is our matrix is given and we have to verify Cayley-Hamilton theorem. Now what is the Cayley-Hamilton theorem? As clearly state that every square matrix satisfy its characteristic equation. This is Cayley-Hamilton theorem. बट उसको सॉल्व करने का एक रूल है, रेगुलेशंस है, उस रूल्स रेगुलेशन से डायरेक्टली याद रखना है आपको किस तरह सॉल्व करना है, बिकॉज वो फॉर्मूला में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करने के बजाय अगर हम डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे तो इट विल वेरी benefit for us for calculating problems. So the first work is same like solution. So first we have to write lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a is equal to 0. So s1 is equal to what? You have to add all the diagonal elements, so you will getting 5. S2 is equal to, we have to calculate, so one by one, while sitting on first diagonal elements and taking the perpendicular, so you will getting 3 0 minus 2 and 1. So 3 0 minus 2 and 1 plus second diagonal element, so 1 minus 2, 0 1 plus third diagonal element, so these two parts, so 1 2 minus 1 and 3. So we have to simplify this determinant. So S2 is equal to 3 ones are 3 because this part is 0 plus 1 into 1, that is a 1, plus this is again 0, 1 into 3, that is a 3, minus 1 into 2, it will becomes plus 2. So we have to add all the terms. So S2 is equal to 3 plus 1 4, 4 plus 5 is equal to 9. Now, next we have to calculate determinants. Anyone from your side or student side, please calculate determinant and let me know. But Determinant is 1. okay, determinant of A is equal to 1. Now, we have to substitute all the value here. So lambda cube minus S1 is 5 lambda square, S2 is 9, so 9 lambda minus 1 is equal to 0. This equation we got. ये इक्वेशन हमको मिल जा रहा है यहाँ पे. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. अच्छा So now next moving this part, that is lambda cube minus 5 lambda square plus 9 lambda minus 1 is equal to 0. This is our equation we got. Now it is clearly that clearly state that by Cayley-Hamilton theorem, or I'm just writing here, that is Cayley-Hamilton theorem states that this equation satisfy or satisfied, I'm writing clearly, satisfied by the matrix A. Because every square matrix satisfied the characteristic equation. This is our statement. So please remember that. तो ये चीज तो हमारे लिए हो गया. अब इसका आगे का जो सॉल्यूशन है, पहला पार्ट तो सेम है जिस तरह हम लोग अभी तक करते आए. जो ये इक्वेशन आप कैलकुलेट करते आए हो, इसको आप ए में कन्वर्ट करोगे. तो दिस पार्ट, बिफोर आई हैव टू राइट दिस पार्ट्स, आई हैव टू
explain one thing. A into A inverse is equal to I. ये सब आपका 11 है ये पार्ट या फिर डिप्लोमा में जब ये that is A into A inverse is equal to I. If I transfer this part here, then what you will get, or we can write clearly, A into I is equal to A into I. किसी को पता है क्या होता है A into I? 1. 1. Yes, sir. 1 होता है या I होता I sir, I. है? I होगा, ये A होगा. You should multiply one matrix A and sir, just to A check. sir, sir A होगा A. A होगा. हाँ सर कंफर्म्ड A. कंफर्म है? हाँ सर, क्योंकि सर I का वैल्यू मतलब 1 हो गया. हम लोग नॉर्मल I का तरीके से मतलब देख रहे हैं. I अगर मैट्रिक्स में हम लोग 1 हो गया. हाँ सर. ठीक है. A इनवर्स इंटू I क्या होगा? A इनवर्स. A इनवर्स इंटू I क्या होगा? A इनवर्स सर, क्योंकि एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग. ओके, तो A इनवर्स ही मिलेगा आपको. तो that is identity matrix, so you should remember these things because these are the very simple properties of matrices. ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज है नहीं. अब यहाँ से हम लोग ये तो सिर्फ आपका रिवाइज किया है मैंने टर्म जो आपको पता था ऑलरेडी. अब कैले हैमिल्टन में हम लोग को दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. एक तो फर्स्ट चीज हमको बोला है ए इनवर्स और एक बोला है ए रेस टू 4. तो जब भी कैले हैमिल्टन थ्योरम का सम सॉल्व करोगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिला है उसको पहले ए में कन्वर्ट करो. सो दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, जो लैम्डा है उसको ए लिखोगे, माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ जो हमको 1 मिला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, अगर 5 मिलता है या 6 मिलता है या कोई नंबर मिलता तो हम लोग लिखते हैं 5 इंटू आई या 6 इंटू आई. आगे जैसे जैसे सम आएंगे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होगी. So whenever we have to calculate any power in Cayley-Hamilton theorem or inverse of that respect matrix, we have to convert the characteristic equation in terms of A. So lambda cube is A cube. lambda को पूरा A से रिप्लेस किया है और जो कांस्टेंट वैल्यू था या जो डिटर्मिनेंट वाला वैल्यू था उसको I से रिप्लेस करोगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आपको 5 मिलता, 2 मिलता, 3 मिलता, कोई भी दूसरा 20 मिल जाता तो 20 इंटू आई होता है. अब यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 इंटू आई लिखने की जरूरत नहीं है, बट 20 होता तो 20 इंटू आई आपको लिखना पड़ता. नेक्स्ट, अगर आपको कैल्शियम में ये चीज वेरीफाई करना है तो यू कैन वेरीफाई बिकॉज क्लियरली वी स्टेट दैट Cayley-Hamilton theorem state that this equation satisfies the matrix A. मतलब क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द Cayley-Hamilton theorem. तो अगर ये लिख सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट वही आता है, बट ये हमको सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए इनवर्स और ए रेज टू पावर 4, ये चीजें हमको कैलकुलेट करना है. अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ये चीजें आपको अच्छी तरह से पता है, दैट इज इक्वल टू आई. ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. अगर ये चीज आपको कैल्सी में सॉल्व करना है तो आप कैल्सी में सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कैल्सी में एक बार वेरीफाई करके देखो ये मैट्रिक्स. सब लोग कैल्सी ओपन करो फटाफट. पहला मैट ए सब्स्टिट्यूट करो, 3x3 का मैट ए आपके पास है क्लियरली. मैट ए रखा सभी ने? Sir, can you show A? ओके, सीधी मैट्रिक्स है. मैट ए रख वैल्यू रख के खाली रुको, कुछ डिटर्मिनेंट उसका कुछ कैलकुलेट मत करो. Yes, sir, done. डन. ओके,
Now see, I'm just explaining one thing, so please try to understand this part. See this equation clearly. ये इक्वेशन है a क्यूब. तो आप क्या करो, शिफ्ट 4 प्रेस करोगे तो आपको मैटे मिलेगा. शिफ्ट 4 प्रेस किया आपने, Yes, sir. मैटे मिल गया. Yes. उसका पावर क्यूब कर दो. पावर क्यूब कैसे करोगे, देखो वहां पे है ऑप्शन है कि आप क्यूब कोई भी टर्म्स का स्क्वायर जिस तरह फाइंड आउट करते हो उसी तरह क्यूब भी कर Yes, सकते हो. sir. किया आपने? हाँ. ओके. फिर माइनस करो, माइनस किया, -5 लिखा. Yes. शिफ्ट 4 करके मैट ए लिया होगा, उस क्यूब लिखा होगा, फिर -5 लिखा होगा, बराबर है. फिर शिफ्ट 4 करके मैट ए फिर से लो Yes, sir. और उसको स्क्वायर करो. ये स्क्वायर, Yes, sir. देन +9 आपको करना है और फिर से शिफ्ट 4 और मैट ए लोगे. Yes, sir. हो गया. अभी इक्वल कर दो, देखो कितना आता है मेरे को बताओ. कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है बताओ. Yes, sir. Wait एक मिनट. सर सर वो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100. हेलो सर. Yes, 100. 010 Yes, go ahead. 001. 001. ये Yes, हमको sir. किसका मिल रहा है, ये 3 का सॉल्यूशन. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मैंने आपको बताया, अगर मैट्रिक्स है आपका 3x3 है तो ये भी आपका 100 010 001 होगा. तो फाइनली ये सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा. समझ में आया किस तरह इक्वेशन को सॉल्व किया गया है. ये इक्वेशन को जस्ट ऐसे कैलसी से हमने सॉल्व कर दिया, हम दिखा देते हैं क्योंकि वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है ये चीज सॉल्व करने के लिए. मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नहीं पुट करवाया है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको वर्बली याद रहता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. 100 0 0 1 0 0 0 1. तो सिर्फ हमने क्या किया है, मैट ए सब्स्टिट्यूट किया, मैट ए को फिर इक्वेशन के बेस पे हमने सॉल्व किया है कि मैट ए क्यूब है, -5 इंटू मैट ए स्क्वायर है, +9 इंटू मैट ए है, जिससे हमको उस तीनों का रिजल्ट हमको क्या मिला है, 100 0 0 1 0 0 0 1. और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलता है, 0 0 मिल जाता है. तो कहने का मतलब जो कैले हैमिल्टन थ्योरम था वो हमने वेरीफाई यहाँ पे करके दिखाया है. अब हमारा मेन वर्कआउट होता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 को सहारा लेके, इक्वेशन नंबर 1 को यूटिलाइज करके वी हैव टू कैलकुलेट ए इनवर्स. अभी ए इनवर्स यहाँ पे कैसे आएगा, ए इनवर्स कैसे आएगा, आपने क्लियरली एक चीज अगर देखा होगा तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है. ए इंटू आई क्या होता है, ए होता है. एंड ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स. तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय a raised to -1 in equation 1. in equation 1. So a इनवर्स इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर होगा. ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू ए हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर एंड -1 विल कैंसल. a इंटू ए इनवर्स, यू शुड रिमेंबर दैट इज इक्वल टू आई. सो +9 into I. Then A inverse into I. A inverse into I, you should remember that is equal to A inverse. So minus A inverse is equal to 0. क्या किया है हमने, A inverse से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई बोलो या फिर A से डिवाइड करना बोलो, बात एक ही हो जाएगा.
उसको ऊपर लाओगे तो वही बात होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए इनवर्स। तो अब मैं फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू इस साइड चलेगा ए इनवर्स, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाकी जो टर्म्स थे वो एज इट इज ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 9 इंटू आई। अब फिर से आप इक्वेशन लोगे। इक्वेशन आप कौन सा इक्वेशन लोगे यहाँ पे? यू शुड टेक अगेन सिमिलर प्रोसीजर। क्या सिमिलर प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई? देखो एक स्टेप आपको मैट्राइसिस का दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक साथ पूरा कैल्सी में नहीं सॉल्व किया है, मैंने एक टर्म का थोड़ा वर्कआउट दिखाया है यहाँ पे। तो उसी तरह आपको भी शो करना है बिकॉज स्टेप को मार्क्स है। नाउ अगेन टेक मैट ए फिर से लो, और ये इक्वेशन सॉल्व करना है हमको फटाफट। टेक ए मैट ए का वैल्यू यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, फटाक से लो कैल्सी में। Now hope मैट ए सब्स्टिट्यूट करके हो गया होगा आपका। Yes, now sir. we have to solve this equation। शिफ्ट 4 करके मैट ए का स्क्वायर ले लो। शिफ्ट 4 मैट ए मिलेगा, उसका स्क्वायर लो, -5। फिर शिफ्ट 4 करके मैट ए खाली ले लो और मुझे वैल्यू बताओगे कितना हुआ है। -6 2 एक मिनट, -6 2 6 6 1 minus 8 1 -8 2 2 2 2 minus 4 2 2 -4। बाकी लोग भी चेक कर लो ये मैट्रिक्स मिल रहा है सॉल्यूशन के बाद या नहीं। हाँ सर यही आया। When again I am writing identity matrix but here it is 9 है, तो जो 1 0 0 0 1 0 था 0 0 1 1 9 0 0 हो जाएगा। ऐसा 9 0 0 0 9 0, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई है 0 0 9। तो ये एक स्टेप हमको दिखाना है मैट्रिक्स लिख के। ऐसा नहीं है डायरेक्ट तीनों चीजें कैल्सी में, कैल्सी में एक साथ सॉल्व हो जाती है। आपको खाली एक मैट बी भी डायमेंशन लेके ऐड करना होगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। बट एक स्टेप आपको मैट्रिक्स करके दिखाना है, क्योंकि ये माइनस प्लस डायरेक्ट हो जाता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट हमको सब्सट्रैक्शन -6 + 9 रिमेनिंग इज 3 2 + 0 -6 + 9, बट माइनस था इसलिए वहाँ पे 3 हम लोग लिखे हैं। 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2 6 + 0 6 1 + 0 1 -8 + 9 remaining is 1 2 + 0 that is 2 2 + 0 2 2 -4 + 9 remaining is 5। ये हमको ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाता है। सो होप क्लियर होगा ये चीज सभी को कि ए इनवर्स किस तरह हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो दैट इज 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इट इज our A in our respective matrix. Now moving ahead with the next part, A raised to 4. तो A raised to 4 हमको किस तरह कैलकुलेट करना है? Again we have to take the help of equation number 1. इसको A स्क्वायर किस तरह बनाया जा सकता है? अगर मैं A से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? A raised to power 4। तो A raised to 4 power 4 हो जाएगा, मतलब A raised to power 4 I can calculate easily। So I have to just write here multiply by A in equation number 1। in equation number 1 तो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे इक्वेशन नंबर 1 में ये A raised to power 4 होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। So A raised to power 4 minus 5 into A cube, बिकॉज वहां पे A स्क्वायर था तो 5 into A cube हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट 9A था तो 9A स्क्वायर हो जाएगा, और I था तो I into A और A
into I that is equal to A, तो माइनस A is equal to 0. एक बार इक्वेशन देखते हैं हम लोग. A से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेटिंग a रेज टू पावर 4 माइनस 5 इंटू a क्यूब प्लस 9 इंटू a स्क्वायर and a into I. So a into I which is equal to a. So we have to take equal side. So a raised to 4 is equal to a raised to power 4 is equal to पूरा वो साइड जाएगा तो 5 into a cube minus 9 into a square plus a. कैल्सी में लेके सॉल्व करो फटाफट इस चीज को. तो a raised to 4 आपको डायरेक्ट मिल सकता है यहाँ पे. जैसे मैंने आपको बताया पहले मैट ए सब्स्टिट्यूट कर लो. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग मैट ए फिर वो इक्वेशन सॉल्व करो. मैट ए आपके सामने है यहाँ पे. सर मैटे ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है, हम लोग एक बार डालते हैं ना उसके बाद. हाँ तो स्टोर्ड रहेगा. तो बाई चांस हाँ, अगर सर. किसी ने इरेज वगैरह किया होगा इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ. कभी कभी क्लियर कर देते हैं ना शिफ्ट दबा के. तो अगर हाँ, क्लियर सर. नहीं किया रहोगे तो रहेगा. अगर क्लियर कर दोगे तो नहीं रहेगा. तो अगर मैट ए स्टोर है तो डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अभी तो आइडिया हो गया होगा इक्वेशन किस तरह सॉल्व करना है. तो a रेज टू 4 का आंसर मुझे डायरेक्टली आप बताओगे अब सब लोग. सर -55. जस्ट अ सेकंड. -55 104 104 24 -20 24 minus -15 minus 32. 15 15 ना. हाँ सर. 32 32 next 32 सर वापस से. 32. हाँ. -40 yeah एंड -23. minus 40 हाँ 40. 40 हाँ -23. minus 23. बाकी लोग का भी यही आया. जस्ट वेरीफाई. Yes. Yes, sir. Okay. So hope everyone aware about this, how to tackle Cayley-Hamilton theorem problems. One more time, I'm going to explain. सर मुझे एक डाउट था कि हम लोग मैट्रिक्स की वैल्यू फिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इधर. सॉल्व करके बता देंगे. सर ये नीचे नीचे हाँ डायरेक्ट इधर सर. because That is कैल्सी अलाउड है. कैल्सी अच्छा अलाउड ओके सर. तो यू कैन गो अहेड विद डायरेक्टली. अगर कैल्सी अलाउड नहीं होता आपको एग्जाम में तो आप, अगर आपको ऐसा लगेगा डाउट है कि मेरा मार्क्स कैंसिल हो जाएगा एंड ऑल, तो लिख दो खाली 5 इंटू मैट ए लिख दो यहाँ पे और उसका क्यूब -9 इंटू मैट ए उसका स्क्वायर लिख दो माइनस मैट ऑफ ए. बट सॉल्व आप कैल्सी में करके डायरेक्टली रिजल्ट ये लिख सकते हो. अच्छा ओके सर. बिकॉज द कैलकुलेटर आर अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. अगर वो अलाउड नहीं होता तो आपको पूरा लिख के मैनुअली हर चीज शो करके दिखाना पड़ता. सर वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहता साथ में. हाँ तो टाइम कंज्यूमिंग रहता, लेकिन अगर अलाउड नहीं रहता तो फिर करना ही पड़ता है एडजस्ट ना. हाँ सर. So this is our problem. Verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A and hence find A inverse and A raised to power 4. A raised to power 4 हमको कैलकुलेट करना था. मैंने शायद A ही लिखा है यहाँ पे. तो A raised to power 4 कुछ भी आ सकता है. A raised to power 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, any power. So you should be prepare according to that. A raised to -2 भी आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए. तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में. जो टर्म फाइंड आउट करना है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम ए से में कन्वर्जन करते हैं उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देने का. सीधा सिंपल. ए रेज टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये तो प्रॉब्लम हमने जिस तरह आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किया था वहां तक का सेम है. लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. उसके बाद पूरा वो पार्ट लिखा. कैले-हैमिल्टन थ्योरम में हमने उसको a से कन्वर्ट कर दिया और जो कांस्टेंट है या डिटर्मिनेंट वैल्यू था उसको i से. रेस्ट हमने वेरीफाई करके देख लिया कि a इक्वल टू 0 होता है. जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन था. हर एक क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाना ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको डाउट रहे एंड ऑल रहे तो यू हैव टू वेरीफाई एंड चेक.
next multiply by A inverse किया है because A inverse we have to calculate, so multiplying by with A inverse in equation number 1. So according to the properties of matrix we got that is A inverse into I that is equal to A inverse. तो A inverse find out करना है तो उसको एक पॉजिटिव वैल्यू रखो. So A inverse equal to A equation मिला, इक्वेशन को हमने अपने कैल्सी में सॉल्व किया प्रॉपरली. So according to that we got A inverse is equal to 326112225. Then again where the question was given that is we have to calculate A raised to power 4. So already A cube is present in equation number 1, that is A cube. So if we multiply by A in this equations we will get that is A raised to power 4. So again we multiply by A in equation number 1. So after multiplication or multiplying with A in equation number 1 we got this equation A raised to power 4 minus 5 into A cube plus 9A square minus A. मैंने हमेशा ये चीज़ आपको कहा है कि जो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है उसको आप पॉजिटिव रखोगे तो इट विल बी अ बेटर, कि बाद में वो मसला नहीं रहेगा कि माइनस साइन को वो साइड भेजो ये साइड भेजो, वो नहीं रहेगा. तो सबसे पहले रेस टू 4 को पॉजिटिव कर दो, मतलब इसको इक्वल रेस्ट ऑल द टर्म्स वी ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड एंड आफ्टर सॉल्विंग इन द कैलकुलेटर बाय पुटिंग. देखो यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू रॉन्ग होगा, फॉर एग्जांपल आपका फाइनल आंसर में एक भी वैल्यू रॉन्ग होता है लाइक 104 का आपने बाय मिस्टेकली अगर यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स में अगर कुछ भी गड़बड़ किया रहेगा, मैट ए में अगर रखने में एक भी वैल्यू में अगर कुछ भी गड़बड़, जैसे 0 -2 1 है, यहाँ पे गलती से -1 आ गया है, तो फिर आपका ये जो रिजल्ट है डेफिनेटली रॉन्ग आएगा. 101% रॉन्ग आएगा. जो भी मतलब रिजल्ट सॉल्व करोगे डेफिनेटली रॉन्ग आती चले जाएगा. तो मैट्रिक्स जब भी पुट करो कैल्सी में मैट ए तो अच्छी तरह से ध्यान से पुट करो, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम एरर एक बार स्टार्ट में एरर आ जाएगा तो एंड में एरर रहेगा. और अगर एक भी वैल्यू रॉन्ग आता है यहाँ पे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. ये चीज़ याद रखो. स्टेप वाइज जो आप आए हो, जैसे ये स्टेप पे मार्क्स मिल जाएगा, मैट ए रखा था आपने, तो जो भी आप स्टेप वाइज आए उस स्टेप पे आपको मार्क्स है. लेकिन अगर मैट ए में रॉन्ग है तो आंसर, जैसे ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो 6 मार्क्स में से ऑलरेडी 2-3 मार्क्स रॉन्ग हो चुके हैं, तो रिमेनिंग खाली आपको, जैसे ये पार्ट है इसके 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, 2 मार्क्स इसके ही आपको खाली मिलेंगे. रिमेनिंग आपके जो भी वर्क हैं वो आपके रॉन्ग चले जाएंगे. तो जब भी मैट ए में वैल्यू रखते हो आप तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मतलब याद रख के प्रॉपरली रखो, क्योंकि ऑलरेडी सेव रहता है वो मैट ए, तो फिर आप फटाफट डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करते चले जाते हो. सो बी केयरफुल अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. होप सबको समझ में आ गया होगा बिकॉज बहुत इजी चैप्टर है. का है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, सबसे सिंपलेस्ट मतलब गिफ्टेड मार्क्स है इसके यूनिवर्सिटी पेपर में. सर सेम 4 का पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो ये पूरा प्रॉब्लम ये पूरा ऑनलाइन हो जाएगा ना मैथ्स? सर सेम 4 का पूरा सेम ऑनलाइन होने वाला है, ऐसा आया था मतलब. आइडिया नहीं बेटा, हमको यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आया है. ओके सर. Okay, so moving ahead with the next problem. जो भी मैथ नोटिसेस आएंगे यूनिवर्सिटी के आपको अपने ग्रुप पे मिलेगा. तो अभी से डिसीजन मत लो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा. जो भी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस आता है वो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे अगर कोई भी गाइडलाइंस है तो देन यू विल गो अहेड विद द नोटिस. अदरवाइज न्यूज़ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो नहीं. जब तक मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लेटर हेड पे या आप जो भी कॉलेज में एडमिट हो यूनिवर्सल में हो तो उसके लेटर हेड पे आपको नहीं कोई भी चीज़ मिलता है तब तक वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती. तो सेकेंड प्रॉब्लम, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of the matrix A
given below, and hence find the matrix represented by a raised to 8 minus 5 a raised to 7 plus 7 a raised to 6 minus 3 a raised to power 5 plus a raised to 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I, where a is equal to 211 010 112. So this is our matrix is given. थोड़ा सा क्वेश्चन है. सबसे पहला जो वर्क आपको सिखाया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है आपको. बड़ा इक्वेशन देख के डरना नहीं है. सॉल्यूशन लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. तो s1 इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे 2 2 1 5, s2 इज इक्वल टू, so 2 1 जा 2, so 2 प्लस सेकेंड डायगोनल पे प्लेस हो गए तो दिस पार्ट इज 2 2 जा 4 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस last diagonal 2 1 जा 2, so 2, so s2 is equal to, you will getting 7. And determinant of a is equal to 3. 3. 3. Thank you. So determinant of a is equal to 3. So we have to substitute all the values in this characteristic equation. So we'll getting lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3 is equal to 0. Is equal to 0. अभी इसको हम लोग बार बार वो स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे. दैट इज दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द कायले हैमिल्टन थ्योरम, बिकॉज वो तो सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने लिखा था. तो द इक्वेशन मैं यहाँ पे खाली लिखूंगा, द इक्वेशन satisfied by a. तो इसको हम a में कन्वर्ट कर देंगे. तो दिस पार्ट विल बिकम्स a क्यूब minus 5 into a square plus 7a minus 3i equal to 0, and this is my equation number 1. ये चीज हमको मिल गया. लेकिन एक और इक्वेशन दिया गया है. The one more equation is given, that is the matrix. Find the matrix represented by this equation. अभी ये इक्वेशन का अगर पावर आप अच्छी तरह से देखोगे, the power is given a raised to 8. a raised to 8 is given, and this is a raised to 3. So first our work is what? We have to divide this equation by using our characteristic equation in terms of a. So हमारे लिए हमको यहाँ पे एक एक्चुअल डिवीजन मेथड अप्लाई करना है. एक्चुअल डिवीजन मेथड आपने सीखा होगा स्कूल में, और बीच में हमने मेथड सॉल्व भी किया था.
So I'm just writing here that is this equation is a raised to 8 5a raised to 7 plus 7a raised to 6 3a raised to power 5 plus a raised to power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I. किस कौन डिवाइड कर रहा है? और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a, so a cube minus 5a square plus 7a minus 3i. Very easy division we have to apply. So one by one we have to tackle this. देखो a raised to 8 है, a raised to cube है, so a raised to 5 we have to use. So this will becomes a raised to 8 minus 5 into a raised to 7 plus 7 into a raised to 6 minus a raised to 5 into I will becomes 3 into a raised to power 5. So minus plus minus plus. This part get cancelled. This part again get cancelled. This part again plus minus hai, and this is again get cancelled. So remaining is what? A raised to power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I. अभी किससे मल्टीप्लाई करोगे? a raised to power 4 है, a cube है, so we have to take a. So a raised to power 4 minus 5 into a cube plus 7a square minus 3a plus 3a divided by, so minus plus minus plus, so this part get cancelled, this part get cancelled. Remaining is what you have to just see, that is 8 minus 7, so remaining is as it is a square, then minus 2a plus 3a, so remaining is a and plus I. अब मैं वो चीज पूरा नहीं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, या फिर पूरा इक्वेशन मेरे को लिखना पड़ेगा. एक रूल रहता था लिखने के लिए, इफ यू रिमेम्बर और इफ यू अवेयर अबाउट द थिंग इज व्हाट वी हैव टू राइट. This is equal to this into this plus this. I'm just writing if you want, that is a raised to 8 minus 5a raised to 7 plus 7a raised to 6 minus 3a raised to 5 plus a raised to 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I is equal to. So this is into a cube. एक पैटर्न तो पता होगा लिखने के लिए सबको. a cube minus 5a square plus 7a minus 3i into a raised to 5 plus a my plus, that is the remaining term, that is a square plus a plus I. Now according to Cayley-Hamilton
theorem, if you remember, that is every square matrix satisfies its characteristic equation. So this part is by default 0. This part is by default 0 because a cube minus 5a square plus 7a minus 3i, that is equal to 0. So from equation number 1, so from equation 1, this part is by default 0. So 0 into anything is equal to 0. So that is equal to, सिर्फ बचेगा क्या, a square plus a plus I. Only remaining term will becomes a square plus a plus I. Now we have to tackle. So a square plus a plus I is equal to, इसको हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सो देन यू विल गेटिंग द वैल्यू. तो ए स्क्वायर मतलब मैट ए आपके पास होना चाहिए 211,0,112 प्लस इसका स्क्वायर है. सो मैट ए एज इट इज 211,0,112 plus I is our 100,010,001. और ये कैल्सी में आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो क्या मिलता है. ये दोनों सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए प्रॉपरली. एनीवन, लेट्स गो अहेड विद दिस टू पार्ट. ए स्क्वायर और एक का प्लस करके सर 755 जस्ट अ सेकेंड. 755 020 020 557 557 यस प्लस, या डायरेक्ट ये लिख के ये इस जगह पे डायरेक्ट ये पार्ट लिखते हैं और ये लिखते 100,010,001. अभी यहाँ पे सिर्फ एडिशन करना है हमको. देन विल गेट द रिजल्ट. 7 plus 1 that is 855. नाउ 0 एज इट इज, ये 3 हो जाएगा आपका, एंड 0 एज इट इज 558. एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. सो इस काइंड भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा कि कोई बड़ा इक्वेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन नंबर 1 से पहले आपने लैम्बडा के फॉर्मेट में कैलकुलेट किया है, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. बट व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ए, it is a form of a characteristic equation of a matrix in Cayley-Hamilton theorem. और उसके बाद find the matrix represented by, एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है a raised to 8 minus 5 a raised to 7 plus 7 a raised to 6 minus 3 a raised to 5 plus a raised to 4 minus 5 a cube plus 8 a square minus 2 a plus I, जिसमें और हमको मैट्रिक्स से दिया है. तो ये इतना बड़ा इक्वेशन है. हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a क्यूब है और गिवन जो था a रेज़्ड टू 8 था. तो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल डिवीजन मेथड वी कैलकुलेटेड एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस I. किस तरह एक्चुअल डिवीजन में डिवाइड किया, लिखने का रूल्स जो है उस रूल्स के बेसिस पे मैंने लिखा है. And according to equation number 1, if you see, that is our characteristic equation in terms of a is equal to 0. तो वो पार्ट 0 होगा. तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखोगे 0 into anything will become 0, remaining will becomes a square plus a plus I. और उसी को हमने मैट्रिक्स को कैलसी से सॉल्व किया है. And we got the expression 855,030 and 558. ये हमारा required solution था. Now the attendance, I'm sharing the link. So if anyone having any doubts till now, so just let me know.
Please go ahead with the attendance. And if there is no doubt, so you after filling the attendance sheet, you can leave the lecture. No worry.